Hi, good evening everyone. Hearty welcome to Raj Lakshmi Solutions Private Limited webinar cum training session. Well, let's first welcome our speakers today. So, Mrs. Anaga, are you here? Yes, I'm here. Hi, Mrs. Anaga. Hearty Hello. welcome to the session. Thank you. And Miss Manali as a support resource person. So, Miss Manali, are you here? Yes, ma'am. Hello. Hi, Miss Manali. Hearty welcome to the session. Thank you. Okay, so I think now the speakers are here. So apologies and do consider this from our end. Okay, so now let's go to the introduction part of Raj Lakshmi Solutions Private Limited. What is Raj Lakshmi Solutions Private Limited? Basically, we are into 4 different sectors. Wow, what's that? Okay, so we are into Tally ERP9, into Tally Prime, an accounting software, cum business solution software, and we are into Bitrix CRM, a customer relationship management software, and we are also into SAP Business One, a key for every business processes and solutions, and we are into Skill India. That is a government project which is specifically concerned for the education of children's, and we have added up 2 different sectors also, which is really very useful for the work from home scenario. The pandemic has created a high demand for these 2 softwares. That is, one is cloud desktop, that is different and unique, really makes anywhere and everywhere. So the software is really unique that you can sit anywhere and utilize all your precious time for your productivity. So set your office anywhere and everywhere. And the next is Acronix, which is like a highly demanded as well as the topmost software for your backup, and at the same time this also flexibles you to sit anywhere and everywhere and work your process as well as your progress. Alright, so this is the softwares what we play around. So let us see what we do exactly with all these software. So yes, what we do, we are basically into sales, we are into support, we are into solutions, as well as we are into customization and advisory. Alright, so all these names are familiar, but yes, what does this advisory really stand out of the box? So let's see what is this advisory. Advisory is nothing but when an organization is interrupted due to any scenarios, or when it is distracted, or it is out of the control due to some scenarios. So at that moment, we just step ahead and suggest certain things, and we just make the organization to flow in a smoother way. So this is what advisory is. We play around with the software, we play around with the solutions, and we just provide the best solution and the process for any organization. This is what we do. Okay, so along with this, now let's see a few instructions before going ahead onto this presentation. That is, this call is getting recorded, so request you to please go and watch our social media sites, wherein you can see the Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, and many other social media sectors, wherein this video will be recorded and uploaded into the social media, wherein if you have any confusions, any interruptions in and on, you can just go ahead and you can watch the video and you can grab the note. You can see the previous videos, previous sessions also, which will be most useful to all of you for your business flow running, as well as business smooth processes along with the productivity. So that's it. And apart from this, let me give you one more instruction, that is if you have any doubts or any questions, do update in the comment box by short term
like once we finish off the presentation, we can just go ahead with your question and answer session also as time permits. And yes, the YouTube link and the contact person details will be uploaded in the comment box shortly, so you can just click on it now itself, because once the call gets disconnected you will not be able to find it. But beyond this, if you wanted to just check out, request you to go to Google and type rajlakshmiworld.com. You can find the YouTube page, you can find the website page, and you can find all the social medias page. So just connect us and grab the offers also. Every week, Rajlakshmi Solutions Private Limited is running with different offers. So request you to please join us to know the offer and grab the offer and use it to increase your productivity. All right, so Mrs. Anaga, I'm done with my part. So now it's over to you, Mrs. Anaga, so you can run out with your presentation. I think people are excited and waiting on to the topic. Before going ahead, I request you to please introduce yourself, Mrs. Anaga, and then proceed ahead. Request you to please take over the session now. Thank you so much, Deepa. Hello everyone. Yes. Myself Mrs. Anaga Naik. I am representing Rajlakshmi Solutions. So today I am here to conduct the webinar session cum training session of multi-7 models. So just a minute, I am sharing my screen. First I will be doing it theoretically, then we'll move for practical session. Just a minute. So my screen is visible? Yes, it's visible, Mrs. Anaga. Okay. This is our Rajlakshmi family. Welcome all of you. So today's topic is the multi-7 models. What is multi-7 model? So basically ये जो मॉडल है ये हम सभी इंडस्ट्री के लिए कैसे यूज होगा, कितना यूजफुल है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, ये हम देखेंगे. तो व्हाट इज मल्टी-7 मॉडल? सो फर्स्ट पॉइंट है ऑडिट ट्रेल मॉडल. सेकंड इज ऑटो ऑथराइज सिग्नेटरी मॉडल. ये जस्ट मैं अभी पॉइंट वाइज आपको बताऊंगी एंड उसको हर एक को एलैबोरेट करूंगी. थर्ड पॉइंट इज प्रीवियस आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन इनवॉइस. नेक्स्ट इज रिसाइकल बिन मॉड्यूल. नेक्स्ट इज ओवरड्यू बिल पॉपअप मॉड्यूल, एमआईएस डैशबोर्ड एंड ऑटो बैकअप मॉड्यूल. सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ईच एंड एवरी मॉड्यूल का क्या यूज होगा, क्या बेनिफिट्स होगा. सो ये फर्स्ट मॉडल इज ऑडिट ट्रेल मॉडल. सो ऑडिट ट्रेल मॉडल क्या होता है? ये हमें इजीली ट्रैक करने के लिए कि जैसे हम अगर कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं, हमारी कंपनी में मल्टीपल यूजर्स वर्क करते हैं जो अकाउंटिंग मैनेज करते हैं. तो अगर कोई यूजर ने कोई भी पर्टिकुलर एंट्री को अल्टर किया है या कोई उसमें चेंजेस किया है तो हम अभी ट्रैक नहीं कर पाते. अगर हम ऑडिट ट्रायल मॉडल से देखेंगे तो वो सारी चीज़ें हम ट्रैक कर पाएंगे कि ये पर्टिकुलर एंट्री या किसी ने एडिट की है, कौन से यूज़र ने की हुई है, कौन से टाइम पे की हुई है एंड वो पर्टिकुलर किस रीज़न से की हुई है. ये सब चीज़ हम ऑडिट ट्रायल मॉडल से ट्रैक कर सकते हैं. तो इट मीन्स ईजिली हम हमारा अकाउंटिंग या जो भी ट्रांजैक्शंस है वो सुपरवाइज कर सकते हैं हेज़ल फ्री. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट मॉड्यूल. नेक्स्ट इज ऑथराइज सिग्नेटरी मॉडल. जैसे अभी हम पहले कैसे होता था कि हम जो भी इनवॉइसेस है जस्ट कंपलसरी नहीं था कि सिग्नेटरी होनी ज़रूरी है, पर जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो है पर्टिकुलर सिग्नेटरी मैंडेटरी की हुई है. अगर कोई भी इनवॉइस में आपका सिग्नेचर नहीं रहेगा तो आपको पेनल्टी चार्ज किया जाएगा. तो कभी ऐसे होता था कि हम जस्ट प्रिंट आउट निकाल के शेयर कर देते हैं तो जिस पे पेनल्टी चार्ज होती थी क्योंकि उसमें सिग्नेचर नहीं है. तो अभी क्या होगा, अगर आप सिग्नेटरी मॉडल अटैच करोगे, इट्स अ वन टाइम प्रोसेस जिसमें हम सिग्नेटरी बाय डिफॉल्ट सेट करके रखेंगे. आपके जो भी इनवॉइसेस जनरेट होंगे और या फिर आप उसको पीडीएफ में मेल कर दोगे, वो विद सिग्नेटरी आपका पर्टिकुलर कस्टमर के पास डिलीवर्ड होगा. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी मॉडल. कमिंग टू द नेक्स्ट मॉडल, दैट इज रिसाइकल बिल. अभी जैसे मैंने बताया था कि मल्टीपल यूजर्स वर्किंग करते हैं टैली डेटा में. तो टैली डेटा में अगर मेरे पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस वर्क कर रहे हैं और कोई पर्टिकुलर पर्सन ने कोई स्पेसिफिक एंट्री डिलीट की, तो अभी क्या होगा, अगर मैं जीएसटी रिटर्न फाइल करने जाऊँ तो मेरा कंप्लीट डेटा क्या होगा, मिसमैच होगा.
तो हम वो डेटा जो भी डिलीटेड डेटा है वो तो रिकवर नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर जस्ट प्रोसेस मैंने अल्ट डी कर दी और वो ट्रांजैक्शन डिलीट होगा, कहीं पे उसका स्टोरेज अवेलेबल नहीं है। पर वाया रिसाइकल बिन मॉडल आप कोई भी ट्रांजैक्शंस अगर आपने डिलीट किए रहेंगे वो इजीली आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस मॉडल। कमिंग टू द नेक्स्ट मॉडल, प्रीवियस आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन इनवॉइस। जैसे अभी हम लोग कोई पार्टीज को बिलिंग करते हैं, कोई भी पार्टी को जब बिलिंग प्रोवाइड होता है वो करंट उसका इनवॉइस प्रोवाइड हो जाता है, पर सामने वाले पर्सन को पता नहीं होता कि ओवरऑल मेरा अभी तक का आउटस्टैंडिंग कितना है। सो हाँ, इसमें क्या होता है कि अगर आउटस्टैंडिंग किसी को पता नहीं है तो हमारे कंपनी में आउटस्टैंडिंग के लिए बैलेंस बढ़ जाता है। तो वो सिनेरियो में हम एवरी इनवॉइस में पर्टिकुलर पार्टी का प्रीवियस आउटस्टैंडिंग मींस टिल डेट आउटस्टैंडिंग भी प्रिंट होके जाएगा अलॉन्ग विद योर करंट इनवॉइस, जिससे क्या होगा सामने वाले को भी क्लियरिटी रहेगी कि हमें इतना अभी तक आउटस्टैंडिंग पे करना है, और वो इजीली अपना रिकवर भी हो पाएगा जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है। तो ये बेनिफिट आपको इसमें मिलेगा। नेक्स्ट इज ओवरड्यू बिल पॉपअप। सो व्हाट इज ओवरड्यू बिल पॉपअप? जैसे अभी हमने आउटस्टैंडिंग का देखा, तो आउटस्टैंडिंग में हमें आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरड्यू बिल आउटस्टैंडिंग बढ़ते क्यों है? क्योंकि मैं सिर्फ बिल्स जनरेट करती हूँ, बैकएंड में मेरा कलेक्शन नहीं हो पाता है जो भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट है। तो ये सिनेरियो में क्या होगा, ओवरड्यू बिल पॉपअप आपको पॉपअप मिलेगा। जो भी पर्टिकुलर आपने ड्यू डेज डिफाइन किए रहेंगे कोई भी पार्टी को, जैसे अगर मैंने एक बिल जनरेट किया हुआ है और वो पर्टिकुलर पार्टी को 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, सो आफ्टर 30 डेज भी हम वो पार्टी को बिलिंग करते ही है और उसके पहले भी करते हैं। पर यहाँ पे ये मॉडल से आपको ये बेनिफिट रहेगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, पॉपअप मिलेगा कि आफ्टर 30 डेज, जैसे अगर 1 अप्रैल का बिलिंग हुआ है तो 1 मई को आपको पॉपअप दिखाई देगा कि ये पर्टिकुलर पार्टी का ओवरड्यू हो चुका है बट स्टिल पेमेंट नॉट रिसीव्ड। तो ओवरऑल जितने भी कस्टमर्स रहेंगे वो आपको वो पॉपअप मॉडल में शो करेंगे। हम डिटेल में उनको प्रैक्टिकल देखेंगे ये चीजें। सो नेक्स्ट मॉडल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल, दैट इज MIS डैशबोर्ड। कैसे होता है कि मैनेजमेंट लेवल पे जो भी पर्सन्स होते हैं या भी जो भी होता है वो पर्टिकुलर रिपोर्ट इंडिविजुअली नहीं देख पाएंगे कि बैलेंस शीट दे दो या फिर मुझे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट दे दो। सो उनको रिक्वायर क्या होता है कि कंप्लीटली कंपनी का जो भी सिस्टम होगा एक पेज पे उनको क्लियरली मिल जाए, जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उनको फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, नेक्स्ट उसका कैश फ्लो, फंड फ्लो और अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो होती है वो उनको क्लियरली वहाँ पे डिस्प्ले होती है। फिर हमारे टॉप 5 कस्टमर्स कौन से है जिसको हमने सेल किया हुआ है या फिर कितने कस्टमर्स से हमें परचेज किया हुआ है, ये टॉप 5 लेवल पे हम यहाँ पे ये रिपोर्ट में देख सकते हैं। अदर भी रिपोर्ट्स है कि अगर मेरा स्टॉक इन्वेंट्री मुझे देखनी है कि मेरे पास नेगेटिव स्टॉक कितना है या फिर मेरे स्टॉक की स्टेटमेंट क्या है, तो ये हम एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड में व्यू कर सकते हैं, दैट इज नोन एज MIS डैशबोर्ड। ये स्पेसिफिकली मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट बेनिफिशियल है। कमिंग टू द नेक्स्ट मॉड्यूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑटो बैकअप। सो ऑटो बैकअप क्या होता है कि जैसे हर एक कंपनी तो डेटाबेस मेंटेन करती है टैली में, पर उसके लिए सिक्योरिटी क्या है? तो सिक्योरिटी अगर कोई बंदा अगर पर्टिकुलर एंट्रीज पास किया, एंड ऑफ द डे उसने टैली डेटा का बैकअप नहीं लिया और कोइंसिडेंसली अगर कोई हो जाता है तो आप डेटा रिकवर नहीं कर पाते, तो हम क्या करेंगे, ऑटो बैकअप थ्रू ऑटोमेटिकली सिस्टम ही बैकअप ले लेगा। हम एक पैरामीटर्स कॉन्फ़िगर करेंगे जिसमें टाइम टू टाइम या फिर स्पेसिफिक पैरामीटर्स अलाउ वो आपका फोल्डर्स जनरेट होगा। तो इजीली अगर आपको कोई भी प्रीवियस डेट का बैकअप आपको रिस्टोर करना है तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हो, और ये जो प्रोसेस होती है वो डे वाइज हो जाती है। ओके, डे वाइज, डेट वाइज एंड टाइम वाइज, मीन्स आप पूरे दिन में अगर 5 टाइम्स वो प्रोसेस रन किए रहेंगे तो उतनी बार आपका बैकअप ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। ओके, तो ये तो जस्ट था थियोरेटिकली। नाउ विल जस्ट मूव फॉर द टेक्निकल पार्ट, प्रैक्टिकल। Just a minute, I will share my tally screen. In the meanwhile, request you to check on to the comment box. I have shared you the YouTube link. You can just subscribe our channel and you can watch all the videos which will be really very very useful. And अभी हमने देखा बहुत सारी modules है जो हमें बहुत flexible करती है. So now let's go to the live demo. Yes, Anagha, your screen is visible.
ओके Yes. ओके। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे टैली प्राइम ओपन किया हुआ है, तो टैली प्राइम में एक कंपनी हमने लोड की हुई है। अभी टैली प्राइम में जो TDL का प्रोसेस था वो सिस्टम चेंज हुआ है, जो कि अभी फर्स्ट प्रोसेस होता है F11 में। अगर कोई भी आपको TDL कॉन्फ़िगर करना है, आपको जाना है F1 में। आप यहाँ पे व्यू कर सकते हो TDL एंड एड-ऑन्स। तो सबसे पहले हमें तो वो एड ऑन ऐड करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में मैनेज लोकल TDL। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी TDL अटैच कर दिए हैं। अभी हम एक मॉड्यूल वाइज के फीचर्स कैसे प्रैक्टिकली व्यू होंगे वो हम देखेंगे। यहाँ पे होगा एड ऑन फीचर्स। सो अवर फर्स्ट मॉड्यूल इज ऑडिट ट्रेल मॉडल। तो यहाँ पे मैंने ऑडिट ट्रेल मॉडल यस किया। जैसे मैंने आपको बताया था, ऑडिट ट्रेल मॉडल क्या है कि जो भी ओनर है उसको देखना है कि उनके यूजर्स ने कौन से ट्रांजैक्शंस को एडिट किया है या कुछ भी चेंजेस किए, तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगा। मैंने यहाँ पे ऑप्शन अनेबल किया। अब मैं यूजर से एक लॉगिन करके एक एंट्री अल्टर कर लेती हूँ। ओके, ये मेरा 1 अगस्त का बिल है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्वांटिटी चेंज कर दी। यहाँ पे मैंने लिया 120 क्वांटिटी, मेरी क्वांटिटी 150। अब देखोगे कि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी तो चेंज कर दी, पर यहाँ पे मुझे एंट्री सेव करने नहीं दिया। यहाँ पे मुझे शो किया कि रिमार्क्स आर मैंडेटरी। मीन्स अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस आप एडिट करते हो, मीन्स कोई भी अगर यूजर करना चाहता है, तो अंटिल ही एंटर्स द रिमार्क ही कांट सेव द एंट्री। ओके, तो आप देखोगे कि मुझे यहाँ पे प्रोसेस करने नहीं दे रहा है, ही इज ब्लॉकिंग हियर। सो यहाँ पे आप देखोगे रिमार्क्स ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें पहले रिमार्क डिफाइन करना है। क्वांटिटी, जो भी वैलिड रीजन रहेगा वो मेंशन करेंगे वहां पे। यूजर ने यहाँ पे चेंज किया है। अभी हम एडमिन लॉगिन से चेक करेंगे कि हमें वो किस तरह से इंटरव्यू होगी। ओके, तो जैसे मैंने एडमिन लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो वाउचर हिस्ट्री। सो मैंने वाउचर हिस्ट्री पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे हम स्पेसिफिक पीरियड डिफाइन कर सकते हैं जिस पीरियड का आपको सुपरवाइज करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें ओवरऑल ट्रांजैक्शंस दिखेंगे। अब राइट हैंड साइड में मैंने जब भी अल्ट F1 पे क्लिक किया, तो आप देख सकोगे यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में एडिट हुआ है वहाँ पे उसके रिमार्क्स दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट एंटर किया था, तो क्या रीजन था, रेट डिस्काउंट गिवन एज द क्वांटिटी इंक्रीज। देन 16th मीन्स करंटली हमने जो रिसेंट चेंज किया, यहाँ पे आएगा क्वांटिटी चेंज। मीन्स यहाँ पे आप पूरा एनालिसिस मिलेगा और कौन से यूजर ने किया, कौन से टाइम में किया हुआ है। सो दिस इज वाउचर हिस्ट्री। मीन्स यहाँ पे आपको सारा हिस्ट्री रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। So now we'll move to the next module. So the next module is authorized signature. So authorized signature में हमें stamp and signature जो है ना, आपको फाइल JPG फॉर्मेट में या BMP फॉर्मेट में पहले प्रिपेयर करनी होगी, और यहाँ पे हमने दिया हुआ है स्पेसिफिक पाथ अटैच करना। इट इज़ अ वन टाइम प्रोसेस। जब भी आप यहाँ पे पाथ अटैच करोगे, अब जब भी आप साइमल्टेनियसली कोई भी इनवॉइस जनरेट करोगे, तो वो अलॉन्ग विद इनवॉइस आ जाएगा। जैसे भी मैं कोई भी एक इनवॉइस ओपन कर रही हूँ, तो आप देखोगे ये मेरा इनवॉइस से जनरेट हुआ है अलॉन्ग विद द स्टैम्प एंड सिग्नेचर।
ये एक बेनिफिट है कि आपके सिग्नेचर कहीं पे मिस नहीं होगा, पर आपको ये वन टाइम प्रोसेस वहाँ पे अटैच करनी होगी। सो दिस इज माय सिग्नेटरी मॉडल। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट मॉडल पे। सो द नेक्स्ट मॉडल इज प्रीवियस बैलेंस। जैसे मैंने बताया कि पार्टी का टिल डेट तक का जो भी बैलेंस है वो करंट इनवॉइस में विजिबल होगा। तो हम कोई भी एक इनवॉइस ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप देख सकते हो यहाँ पे पार्टी प्रीवियस बैलेंस मींस उसका टिल डेट का जो बैलेंस था वो भी, और करंट इनवॉइस का जो बैलेंस है दैट इज करंट बिल बैलेंस, एंड नाउ टोटल अमाउंट इज 3,78,000 मींस कंप्लीटली आपको यहाँ पे उसका आउटस्टैंडिंग हिस्ट्री मिल जाएगा। दिस इज अ प्रीवियस बैलेंस अमाउंट। सो अब नेक्स्ट मॉडल पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट इज रिसाइकल बिन। जैसे मैंने आपको बताया कि रिसाइकल बिन में क्या होगा कि हम लोग कोई भी टैली में एंट्रीज डिलीट करते हैं तो हमें कहीं पे वो स्टोर नहीं होती है, तो हमने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज रिसाइकल बिन। जो भी आप ट्रांजैक्शन डिलीट करोगे वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ से आप एंट्री ओपन करके उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। ये एडमिन लेवल पे होगा। कोई भी यूजर्स ने अगर ट्रांजैक्शंस डिलीट किए हैं तो यहाँ पे वो स्टोर होंगी। ओके, सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट मॉडल। सो द नेक्स्ट मॉडल इज ओवरड्यू बिल पॉपअप। अभी हम एक फ्रेश इनवॉइस जनरेट करते हैं। सो मेरा जो वाउचर डेट है दैट इज ऑफ 1 अगस्त। मैं यहाँ पे सिंपल एक एंट्री पास कर रही हूँ। अभी यहाँ पे जैसे ही हम बिल सेव करने जाएंगे तो बिल एलोकेशन विंडो में हमें मेंशन करना है कि ये पर्टिकुलर पार्टी को कितना क्रेडिट पीरियड आप देने वाले हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला है 15 डेज। सो उसका ओवरड्यू पॉपअप कब से आना चाहिए? आफ्टर 16 अगस्त। अभी यहाँ पे हमने 16 अगस्त के बाद व्यू होना चाहिए। अभी जैसे ही अगर 17 अगस्त को कभी आप कंपनी लॉगिन करोगे, मैं भी यहाँ पे कंपनी शट कर रही हूँ, और नेक्स्ट इसमें जब भी मैंने लॉगिन किया आप देखोगे आपको टैली की स्क्रीन डायरेक्टली विजिबल नहीं हो रही है, आपको एक ओवरड्यू बिल्स रिसीवेबल की स्क्रीन हो रही है। अभी यहाँ पे जितनी भी कस्टमर्स के या जितने भी आपके पार्टीज के ओवरड्यूज हो चुके हैं वो रिपोर्ट यहाँ पे ओपन होगा। अभी हमने वो जो बिल बनाया था दैट इज ऑफ 1 अगस्त और 16 अगस्त। तो अभी मैं यहाँ पे पीरियड चेंज करूंगी। मैंने यहाँ पे लिया सपोज 1 सितंबर। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे उसका शो कर रहा है न्यू कस्टमर एंड हाउ मच डेज क्रॉस्ड दैट इज 16 डेज। मीन्स इजीली हमें पता चलेगा डे टू डे जब भी आप लॉग इन करोगे कंपनी तो आपको वही टाइम पे रिपोर्ट आएगा इसके कितने दिन ओवरड्यूज हो गए, जो आप इजीली उसका आउटस्टैंडिंग फॉलो भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ओवरड्यू पॉपअप। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट मॉडल। नेक्स्ट इज डैशबोर्ड। यहाँ पे आप देख सकोगे MIS रिपोर्ट करके आपको मेन्यू दिख रहा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया आप देखोगे जो टैली में अलग अलग वे से जो रिपोर्ट्स हम व्यू करते थे वो एक ही प्लेस पे डैशबोर्ड फॉर्मेट में आया हुआ है।
जो आप इजीली व्यू कर सकते हो, जैसे फाइनल अकाउंट समरी, कैश फंड फ्लो, स्टैट्यूटरी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस, इन्वेंट्री समरी। अगर मुझे पहले तो मैं यहाँ पे पीरियड चेंज कर देती हूँ क्योंकि स्पेसिफिक पीरियड का आपको व्यू करना है। तो जैसे अगर मुझे देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो मैं एंटर करूंगी, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। मुझे अगर देखना है मेरा कैश फ्लो क्या है, तो हम यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। आप यहाँ पे एंटर करके भी जा सकते हैं। मुझे जीएसटी के रिपोर्ट्स देखना है, तो मैं यहाँ पे GSTR 1 पे जाके भी क्लिक कर सकती हूँ। मीन्स जो प्रोसेस हम वहाँ पे व्यू करते हैं, तो मैनेजमेंट क्या करेगी, एक ही प्लेस पे सारे रिपोर्ट्स यहाँ से व्यू करेगी। मुझे देखना है कि मेरे नेगेटिव स्टॉक कितने हैं, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक पे क्लिक किया, मुझे पता चलेगा मेरे नेगेटिव स्टॉक कितना है। मुझे डेली ट्रांजैक्शन समरी व्यू करनी है, वो भी मुझे पता चलेगा यहाँ पे। सो मीन्स ये रिपोर्ट है कि आप इजीली एक ही जगह पे सारे रिपोर्ट्स व्यू कर सकते हो। सो दिस इज मैनेजमेंट डैशबोर्ड। नाउ टू द लास्ट मॉड्यूल, दैट इज बैकअप। सो बैकअप के लिए हमें क्या है, यहाँ पे देखो आप कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने डिफरेंट पैरामीटर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि आपका पर्टिकुलर सिस्टम में कौन से फोल्डर में बैकअप होना चाहिए। देन 4 पैरामीटर्स है, आइदर क्लोज कंपनी, लोड कंपनी, टैली एप्लीकेशन एंड और टैली एप्लीकेशन स्टार्ट। आप जो यहाँ पे सेट करोगे कॉन्फ़िगरेशन, उसके अकॉर्डिंग आपका टैली डेटा बैकअप हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, दैट इज टैली एप्लीकेशन एंड एंटर एक्सेप्ट। ओके, अभी ये टैली मैं क्विट कर लेती हूँ। टैली क्विट करके अभी मैं वो स्पेसिफिक फोल्डर शेयर करती हूँ जिसमें वो बैकअप हुआ है। जस्ट अ मिनट। Screen is visible. Yes, it's visible. Now it's visible. Hello. It's getting loaded. Yeah, it's visible. Okay. सो देखिए, मैंने वहाँ पे जो पाथ दिया था जैसे लोकल बैकअप का, तो लोकल बैकअप में यहाँ पे डेट वाइज आपके फोल्डर्स क्रिएट हो गए। जैसे आज 16 है तो 16 डेट का फोल्डर जनरेट हो चुका है। और आप देखोगे यहाँ पे 16:30 मीन्स 4:30 को मैंने वो प्रोसेस रन की थी, तो 4:30 का टाइम शेड्यूल के हिसाब से आपको एक फोल्डर जनरेट हुआ है। और अगर मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये आपका जो डेटा है उसका बैकअप हुआ है। मीन्स पूरे दिन में आप जो भी टाइम वो प्रोसेस अकॉर्डिंग जो पैरामीटर रन किए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग फोल्डर्स जनरेट होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 142 का भी एक बैकअप है और एक 430 का। सो ये इजीली हम कोई भी बैकअप रिस्टोर भी कर सकते हैं यहाँ से। ओके, सो दीपा, दैट्स डन फ्रॉम माय साइड। Thank you, Mrs. Anaga. Thank you so much. It was really a very good explanation on to different modules here. यहाँ पे जरूर मैं ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स को ये जरूर बताऊंगी कि देखो टैली प्राइम की सॉफ्टवेयर तो हमारे पास है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को और भी फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और उसके साथ साथ हम अपने टाइम भी सेव कर सकते हैं और साथ साथ हम अपने मैन पावर को सेव कर सकते हैं, एज वेल एज एनर्जी हम सेव कर सकते हैं ये सारी मॉड्यूल से। एंड एट द सेम टाइम आई मस्ट से बहुत सारी जगह में ऐसे हो जाता है कि हमारे काम के प्रेशर की वजह से या फिर लैक ऑफ टाइम की वजह से हमारे दिमाग से कुछ चीजें छूट जाती है। सो दिस ऑलवेज लाइक गिव्स अ रिमाइंडर एंड दिस ऑलवेज पॉपअप्स एरर। ये सारी मॉड्यूल्स जो है एरर्स को पॉपअप हमें दिखाती है हाईलाइट करके। साथ के साथ इट रियली रिड्यूसेस आवर टाइम, दैट रियली मैटर्स अ लॉट। So all these modules are really very very useful to the Tally software. तो मैं ये जरूर बोलूंगी कि अगर आपको कोई भी questions or request you to please add your questions into the comment box। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी जरूर बताऊंगी कि इस मॉड्यूल्स का अगर आप अलग से स्पेसिफिकली कोई डेमो देखना चाहते हो तो वी आर कम्प्लीटली ओपन फॉर इट। आप हमारे कमेंट बॉक्स में देख सकते हो
we have already shared you the details as well as हमने YouTube के चैनल की डिटेल्स भी डाला है, तो जरूर आप हमें कनेक्ट कर लीजिएगा. आपको सिंगल डेमो इन डेप्थ डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी होगा, तो open for that also. So Miss Manali, are you here? Yeah, Deepa ma'am. Hi, Miss Manali. Miss Manali, would you like to add on something onto this modules? No मैम, आई थिंक मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए सारे पॉइंट्स. मतलब ऐसे कुछ उन्होंने पेंडिंग नहीं रखा है कि जो मैं ऐड कर सकूं, तो उन्होंने सारे पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, और आई थिंक वो सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे. और मेनली टाइम सेविंग, जहाँ पे ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है वो केस में अगर ये मॉड्यूल अगर सब लोग यूज करेंगे तो उनका टाइम बहुत ज्यादा वहाँ पे सेव होगा और उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, और इवन जो मिस्टेक्स होते हैं वो भी मतलब कम हो सकते हैं वो केस में. Very true, very true. Thank you, Miss Manali. Thank you so much. So altogetherly मैं ये जरूर बोलूंगी कि जैसे मनाली ने add on ये किया है, time consume really matters. Yes, time consume at the same time errors को हम कम कर सकते हैं, as मैंने अभी पहले भी वही बात बताया है. तो ये सारी चीजों के लिए ये मॉड्यूल्स बहुत ज्यादा यूजफुल है. तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आप लोग इस मॉड्यूल्स के ऊपर ज्यादा और लाइक इन डेप्थ डिटेल अगर लेना है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो. और एवरी ऑर्गेनाइजेशन only one aim would be the productivity. Productivity always matters to any of the company, whether it is an individual productivity or it is a company productivity. कोई भी हो, हमारी productivity always matter करता है, because that is the development of organization. So उसके लिए I think these modules will really be very helpful. So just focus on to these modules. जैसे मैंने बोला है, Ananga, you can even share your number onto the comment box ताकि customers can directly contact you also. और साथ के साथ जो details हमने डाला है वो details पे भी आप connect कर सकते हो. And at the same time मैं यहाँ पे चलो और भी कुछ चीजें add on करना चाहती हूँ. जैसे मैंने आपको बोला है, we are like working into many different softwares. हम बहुत softwares के साथ साथ services solutions पे भी ज्यादा involved है. तो यहाँ पे what we do is every week, like as if now अभी देख सकते हैं New Year था, उसके बाद में अभी like we can see that we had some Pongal festival, that is Shankranti, different names like has been taken onto this festival, और year end था. तो ऐसे हर एक scenario basis पे हम offers reveal करते हैं. So in that basis, I must say कि every week we just update one or the other offer into social medias or through mails or through SMS, any of the mode of communication. तो हम जरूर ये आपको अपडेट करते हैं. तो मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि आप लोग कनेक्टेड रहो ताकि आप लोगों को कहीं पे भी रिक्वायर्ड कोई मॉड्यूल हो सकता है या फिर आपके रिक्वायर्ड कोई प्रोडक्ट पे कोई ऑफर है तो वो ऑफर अगर आप यूटिलाइज करोगे तो दैट विल बी अ satisfaction point of view from the organization, from the individual also. So be connected, stay connected in all our social media networks as well as with the Rajalakshmi Solutions Private Limited team. So इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी, we are working 24/7 just to serve you. कोई भी अगर आपको सपोर्ट चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए इन सॉफ्टवेयर्स एंड मॉड्यूल्स के अलावा, तो यू कैन जस्ट कनेक्ट अस बाय गोइंग टू आवर वेबसाइट लिंक. यू हैव अ चैट बॉक्स इन द वेबसाइट. आप वहां पे भी चैट बॉक्स में एक मैसेज डाल सकते हो, या फिर यू कैन वॉक इनटू आवर यूट्यूब चैनल. यू हैव द कॉन्टैक्ट डिटेल्स एज वेल एज द ईमेल आईडी, या फिर आप अगर ऑलरेडी कनेक्टेड हो तो फिर आप अपने अकाउंट मैनेजर से कनेक्ट कर सकते हो. We are scheduling an account manager and that account manager will be coordinating with you for any of your solutions or services. So yes, so I think we are here in the end of the today's webinar training session. So I can see here there is no questions. I think details बहुत अच्छी तरीके से explain हुई है. तो अगर आपको कोई भी doubt से कोई भी questions है, request you to please connect us. The details are in the comment box. मैं फिर से आपको बता रही हूँ, this is the last minute. So request you to please click onto that link and do subscribe our channel as well as do follow all our social media network and do connect us to know much more details onto any of the business solution. We are different and we are unique, which makes us different from everywhere as well as anywhere.
So do connect us to find a different solution anywhere and everywhere again. Thank you so much, and thank you, Mrs. Anaga. It was really a very good presentation, and thank you, Miss Manali. It was really very good add-on, I could say, and at the same time, it will be incomplete if I don't thank the audience. So altogetherly, thank you everyone for your patience and presence. आपने बहुत ध्यान से शायद सुना है सेशन को, and I think you will take the right advantage of this session. So altogether, thank you everyone, and stay tuned. See you soon in the next webinar. Thank you. Bye bye. Thank you, Take everyone. care. Yeah. Thank you.